So there are lots of points along the story, as the movie unfolds, when we realize that uh, इन दोनों के बीच की जो एक रिलेशनशिप है भी और नहीं भी, बहुत सटलिटी के साथ दे शो इट कि इट्स नॉट वेरी ओवरपावरिंग. उनकी मतलब जब होता है ना कि जब परफॉर्मेंसेज ही इतने अमेजिंग हो, फिर यू डोंट फील कि कुछ मिसिंग था. एंड क्रेडिट में अगर कुछ हुआ या बीच में अगर कहीं कुछ सोचते सोचते कोई गाना आ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन इट वाजंट दैट वाज एन इंटीग्रल, मतलब वो अगर नहीं भी होते, ऐसा नहीं था कि द मूवी फेल्ट इनकम्प्लीट. द मूवी वाज कंप्लीट इन इट्स ओन सेंस. जिंदगी कट रही है, हाँ आया मैं कैसे कहाँ से क्या बोलूँ था, घर अपना पटरी पे थी खोली शहर के अंधेरे से कोने जहाँ सारे खतरी है, हाँ कीचड़ से निकला. Hi Ashi, welcome to my channel, welcome to my podcast which is called Spoiler Alert with me Cinephile Sanket. So आज आशी हम एक ऐसी फिल्म डिस्कस करने वाले हैं जो हम दोनों की बहुत चहीती है, जिसका नाम है Is Love Enough Sir, which is written and directed by Rohena Gera, which stars Tilotama Shom, Vivek Gombar and Gitanjali Kulkarni. So first of all, Ashi, please introduce yourself, and plus first of all, how are you? And then introduce yourself, and then please introduce this film. Thanks, Sanket. Thank you for having me. I am good. It's a pleasure discussing this movie in our uh, Women's Month. International Women's Day was just yesterday, so this is a very, very relevant movie for that. And this movie, my first impression of this movie was it shattered the glass ceiling. It broke so many stereotypes at multiple levels. So for me, it's one of the best work that Netflix India has come out with. So, yeah, that's in a nutshell. Of course, we'll talk about it as we move ahead. But please introduce this, just say something about the plot. This movie is set in Mumbai, so it's set in it could be any urban setting, and it talks about the unconventional situation between a homeowner and his I don't want to call it maid, but his house help. His house help, exactly. And how he sees her when she is regarded as invisible. So there are lots of points along the story, as the movie unfolds, when we realize that इन दोनों के बीच की जो एक रिलेशनशिप है भी और नहीं भी, बहुत सटलिटी के साथ दे शो इट कि इट्स नॉट वेरी ओवरपावरिंग. एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट द मूवी. ओके, आशी, पहली बार ये फिल्म तूने कभी देखी थी, और जब ये देखी थी तो तब तुझे कैसा लगा था, कैसा अनुभव महसूस हुआ था? और एक्चुअली वही पूछना चाहूंगा कि जब ये तुमने रीवॉच की थी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए, तो तभी कैसा महसूस हुआ था? जस्ट लाइक कैन यू टेल इट? आई वॉच दिस मूवी सबसे पहली बार जब नेटफ्लिक्स पे आई थी, उसके थोड़े टाइम बाद देखी थी मैंने. तो दैट वाज 2019. And it was a very weird thing because मैं ढूंढ रही थी, I was browsing titles जैसे हम usually करते हैं कि I had just finished watching something and then I was searching for something else, and ये recommendation में था from a couple of my friends. तो मैंने सोचा कि let's watch it, और रात के 2 बजे थे. So I was not getting sleep. It was one of those sleepless wala weekends where you're just you're wasting time and you're like chalo kuch na sahi to. And I was like, is the title Sir, or is the title Is Love Enough Sir? That was also there. So I was like, okay, let me give it a shot. और मेरे लिए क्या है ना कि if I like something in the first 10 minutes, I will get hooked onto it, and then I'm going to finish it. So the intro of the movie itself, which starts in the village, और वो फिर journey जो वो करती है coming to the big city, and there are very subtle nuances which I'm sure तुमने भी notice किए होंगे कि जब वो बस में होती है, finally जब वो free होती है, सबकी नजरों से दूर होती है, तब she decides to put on bangles, और वो वो अब खुश है कि now she's
away from, usually क्या होता है कि हम फैमिली से दूर होते हैं तो हम दुखी होते हैं, like we are, you know, we feel that pathos, but for her it was like a relief, and that's what got me intrigued कि इतना क्या बैक स्टोरी होगा उसके साथ, कि ऐसा नहीं था कि कुछ मारपीट या कुछ डोमेस्टिक वायलेंस वाला सिचुएशन था कि घर से भाग के शी केम, बट इन अ वेरी सटल, लाइक रोजमर्रा की जिंदगी में हाउ अ विडो इज treated, and we get to know that later in the movie. That's also not revealed पहले. She's not clad in a white sari. वो कोई obvious वाले signs नहीं कि वो widow है. तो बस ये छोटी छोटी points जो मैंने rewatch करते वक्त भी notice किए in the movie. I think that got me hooked on. mainly young widow, क्योंकि मतलब ये इतनी भी मतलब इतने साल भी नहीं हुए थे इसके शादी को कि लाइक एकदम साल बीत गए और फिर जाकर उसका पति मर गया। आई थिंक कितने बहुत थोड़े महीने बाद ही मतलब वो कैरेक्टर का पति मर गया था। सो मतलब ये एक्चुअली बहुत सैड फीलिंग आ रही थी कि यार ये, और एक्चुअली तूने बराबर बोला कि लाइक फिल्म आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस होती है, उसके बाद पता चलते हैं। मैं एक्चुअली सॉरी कट आउट कर रहा था मैं, लाइक यू कैन गो अहेड। No, you're absolutely right. It's क्योंकि जब कोई young unexpected चीजें होती है ना किसी young person के साथ, तो you tend to feel more for, you know, how is she going to manage, वो इतने बड़े शहर में अकेले कैसे संभालेगी सब। And as the movie proceeds हम realize करते हैं कि वो अपने आप को भी नहीं संभाल रही, लेकिन वो घर पे भी पैसे भेज रही है, और वो अपनी बहन की भी पढ़ाई पूरी कर रही है। So she's extremely strong. तो जो जैसे होता है ना, एक परसेप्शन होता है कि अरे बेचारी अबला नारी, she completely shatters it, you know, and in a very very subtle way she just proves her worth कि I'm not someone to be taken for granted. और एक सीन में जब विवेक गोम्बर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू हर कि फैशन की दुनिया में आगे बढ़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है, वो उस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, लेकिन वो ऐसे अपनी, यू नो, यू हैव बीन बम्बार्डेड विद दैट ऑल योर लाइफ कि तुम गरीब हो, तुम इस तबके से ऊपर नहीं उठ सकती, यू नो, यू आर कॉन्स्टेंटली गिवन दैट। सो शी इज जस्ट टेकिंग इट इन अ नेगेटिव वे, शी इज लाइक मुझ जैसों के लिए मुश्किल होता है, you know, तो वो वैसे लेती है। एंड बिकॉज़ आई थिंक ये ना लाइक आशी एक्चुअली मैं कट आउट करना चाहूंगा, लेकिन ये सच है ना, नॉट जस्ट वो कैरेक्टर की थी, लेकिन इन जनरल वो पूरे क्लास की सच है यार, कि वो पूरे क्लास को ऐसे ही वो बम्बार्ड किया जाता है कि यार ये नहीं, आर्ट तुम लोग के लिए नहीं है, आर्ट या ऐसे कोई हटके कोई लाइन या ऐसा कुछ रहता है, वो तुम लोग के लिए नहीं है, वो सिर्फ है ना जो प्रिविलेज्ड एलीट क्लास के लिए। तो वैसा बम्बार्डमेंट, और वो आई डोंट थिंक सिंबोलिज्म है, तो मैं बहुत बड़ा शब्द कह रहा हूँ, लेकिन लाइक वो चीज यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर के थ्रू दिखाना, वो वाज जस्ट ब्रिलियंट एक्टिंग। बट या गो अहेड, सॉरी। No, and you're right. I can tell you this is the reason why people were able to relate, even Gully Boy. Oh, अच्छा. If you think about it, similar situation, cut to Dharavi, cut to this, you know, local Londa जिसको मतलब rapping, and you're talking about listening to Nas के songs. So again, people were able to relate to that because he was breaking stereotypes. You have a certain perception of someone, and suddenly जब वो बंदी अपनी बहन की शादी का जोड़ा खुद डिजाइन करती है, खुद जाके मटेरियल लेके आती है, so she's so entrepreneurial in her venture कि उसको कुछ स्पेशल करना था, तो ना सिर्फ वो इमोशन था, लेकिन वो इमोशन वाज आल्सो बैक्ड अप विद एफर्ट, एंड शी टुक इट ऑन हरसेल्फ कि नहीं, मुझे मेरी बहन की, अपनी छोटी के लिए ये वाला लहंगा ही लेना है और मैं यही दूंगी उसको, मैं बनाऊंगी। एंड इन अ वे दैट, यू नो, व्हेन, सो इफ वी टॉक अबाउट हाउ द मूवी प्रोग्रेसेस, स्टार्टिंग के सीन्स में जब वो घर पे काम कर रही होती है, और Vivek Gombar comes, you know, I'm going to say the character name, Ashwin comes and goes. वो बस किचन को पास करते रहता है, वो देखता भी नहीं उसकी तरफ, वो घर पे है नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी खुद की दुनिया में ही right now going through a broken marriage. I mean, not technically the marriage never happened, but calling off the wedding, it's a huge deal. चाहे जिसने भी call off की हो,
इट्स अ ह्यूज डील फॉर ईदर ऑफ पार्टी. तो ऐसे सिचुएशन में वो खुद की अपनी परेशानियों में वो उलझा हुआ है और वो दिखती है उलझन, तो वो नोइंगली या अननोइंगली उसको नोटिस नहीं करता. और उसका काम है कि हाँ मुझे घर की देखभाल करनी है, मुझे खाना पकाना है, मुझे सर को टाइम पे खाना, वो वही करती रहती है, अपना अपना काम करती रहती है. और जैसे जैसे उसने अपनी एक द इनिशियल थिंग वेयर शी एक्सप्रेस्ड कि मुझे टेलरिंग का कोर्स सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, दैट इज व्हेन ही आल्सो started seeing her as not just his maid but as a person, as a human being. एंड मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल दे सकूँ तो मेरे मेरे घर पे जो बाई, या जो मतलब हम बाई नहीं बोलते हैं, कभी उनको दीदी बोलते हैं, उसकी बेटी, शी वाज 3 or 4 years elder to me, एंड उसको बहुत क्लियर था कि उसको लाइक आफ्टर एजुकेशन उसको बाई नहीं बनना है. तो अगेन अ वेरी सटल रेफरेंस टू नील बट्टे सन्नाटा, जैसे बोलते हैं ना कि बाई की बेटी बाई बनती है. I have seen it in my home that she then later started working at a beauty parlor. धीरे धीरे करके आज उसने अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है. I am so proud of her, and that is, I mean, it's one of the shining examples of the new generation, the new India, जो ये stereotypes में believe नहीं करता, who want to give that equal opportunity. तो जहाँ पे जहाँ पे लोग आपको पुट डाउन करेंगे, आपको हमेशा रिमाइंड करते रहेंगे कि आप यहाँ से बिलोंग करते हो, आप यहाँ इससे आगे नहीं जा सकते. देयर आर पीपल लाइक अनुप्रिया गोयनका आल्सो, हु इन द एंड ऑफ द मूवी गिव्स हर दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हर, यू नो. तो वो वैसे लोग भी हैं, एंड आई एम सो ग्लैड कि those people are increasing more and more in our society. वो पुराने ख्यालात वाले लोग भी हैं कि थाली अलग करो, इनको अलग से बिठाओ, इनको अलग ग्लास में पानी पिलाओ. आप रोटियां भी उनके हाथ से ही खाते हो ना एक्चुअली, आप उनके हाथ की चाय भी पीते हो ना. तो where is this discrimination coming from? That is something which this movie made us question that. Absolutely. एक्चुअली मैं बोलूँ ना कि मैंने आशी तेरे कहने पे ही मैंने ये फिल्म देखी. तूने बोला कि चल यार कुछ हिंदी फिल्म पे करते यार, तो मैं बोला I'm glad. एग्जैक्टली मैं बोला चल कौन सी करनी. तूने ही बोला कि यार सर देख ले, सर इतनी अच्छी है, और तूने बहुत पहले बोला था. बोला चल यार फाइनली आशी के कहने पे देखना ही है. तो मैं तेरे कहने पे देखा, और मुझे इतना लगा नहीं था, मैं खुद श्योर नहीं था कि यार ये अच्छी निकलेगी या नहीं निकलेगी. लेकिन मैं दंग रह गया, मैं हैरान रह गया, मैं सच बोलता हूँ. क्योंकि इतनी मतलब इंटीमेट होके भी इतनी इंटीमेट नहीं हो सकती. मतलब मैं वैसे ही बोल सकता हूँ कि इस फिल्म में एक भी कोई इंटीमेट सीन्स नहीं है, लेकिन वो इंटीमेसी, वो जो एक दूसरे के साथ वो फॉरबिडन जैसा था ना, वो रहना, मतलब इतना अच्छा वो दिखाया है ना यार, मैं सच बोल सकता हूँ. और एक एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारे ऐसे सीन्स हुए हैं कि जहाँ पे मतलब ऐसे पैन शॉट्स लिए हैं, एक लाइक आई थिंक एक सीन से दूसरे सीन तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो वॉल जैसा क्रिएट किया है बहुत सारे सीन्स में. जैसे कि एक वॉल में यहाँ पे अश्विन है, और इस वॉल पे वो तिलोत्तमा शोम की कैरेक्टर, में एक्चुअली कैरेक्टर का नाम भूल गया. रत्ना. रत्ना, एग्जैक्टली रत्ना. सो वो एक लाइक वो यहाँ पे है. तो एक बहुत अच्छा लाइक डिवाइड क्रिएट किया है. और इवन जैसे पोस्टर में भी पता चलता है, पोस्टर में भी वहां पे एक वर्ल्ड जो उन लोग को ये करता है, डिवाइड करता है. सो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में बोलते. तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मुझे बोलना चाहूंगा गीतांजलि कुलकर्णी का, जो लाइक हर मूवी में एक वो एक मतलब बोलते हैं लीड कैरेक्टर की दोस्त रहती है, जो लाइक पूरे मूवी को यार बदल देती है. ऐसा रहता है, वो पूरे मूवी को लाइक लाइट अप कर देती लाइक. और इस फिल्म में भी लाइक मतलब ऐसे ही किया था. आई थिंक अभी उनको ऐसे रोल्स नहीं मिलते, वो एक्चुअली एक लीड कैरेक्टर्स जैसे रोल्स मिलने लगे गीतांजलि कुलकर्णी जी को. लेकिन लाइक ऐसे तरीके के रोल्स में भी लाइक वो इट्स लाइक शी किल्ड इट. आई थिंक ये फिल्म 2018 का शायद से कुछ बना था, ऐसा लग रहा है. क्योंकि लाइक
18 में भी ऐसे वो पायरेटेड कॉपीज आना शुरू हो गए थे। मैं बोला ये कौन सा फिल्म है, पता नहीं। और एक्चुअली ये रिकॉर्ड करने से पहले तूने एक बार बोला था कि विवेक गोमर कौन है, मुझे पता भी नहीं था। लाइक इस फिल्म से के थ्रू पता चला। मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगा, मुझे पता था उनका ये सेकंड फिल्म है ये शायद से। फर्स्ट फिल्म है कोर्ट करके, जो मराठी फिल्म है, जो इंडिया का ऑफिशियल एंट्री भी रह चुका है। लाइक वो कोर्ट फिल्म के प्रोड्यूसर थे और ये भी स्टार भी थे, जो चैतन्य तमने, लाइक ही डायरेक्टेड इट। ही आल्सो एक्चुअली प्रोड्यूस्ड a new film by Chaitanya Thammane जो गए साल आई थी, द डिसाइपल, जो वेनिस में बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीती थी। सो लाइक मैं उनके काम से एक ब्रिलियंट मूवी, एग्जैक्टली, लाइक मैं उनके काम से बहुत फेमिलियर हूँ। नॉट लाइक मुझे इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं लगी थी उनकी इसमें कोर्ट में, लेकिन इस फिल्म में आई थिंक उन्होंने बराबर रोल प्ले किया है यार। कि वो अपर क्लास, और वो लाइक वो जो रहता ना कि उनका क्या बोल सकते हैं, वो पहले पहले तो एटीट्यूड तो नहीं, लेकिन वो बोलता ना कि यार अपने खुद के ही वो उसमें जूझ रहे, और लाइक उनको खुद को आंसर्स नहीं मिल रहे। वो एक्चुअली चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी यार। लेकिन एक एक्चुअली पूछना था। या श्योर श्योर, सॉरी आई वाज कटिंग यू शॉर्ट। नहीं एक्चुअली stereotypical upper class, I actually felt he wasn't. He was in fact breaking that stereotype. So these are two characters who are breaking their own stereotypes. One is that house help who's coming out, who's trying to find her space, and this other guy जो आप उसकी फैमिली को भी देखो, उसकी बहन आके बोलती है कि दिख नहीं रहा कि हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, you know, and then even while leaving she's like, I gotta go, my bloody maid hasn't come today, you know. The mother is again someone who, you know, not in a brash way, लेकिन वो होता है कि हाँ मतलब तुम लाके मेरे लिए ये कर दो, लाके वो कर दो, ये कर दो, you know. तो वो जो एक stereotype है of a rich family, जिनको शायद you know ये जो house helps होते हैं, आपके ड्राइवर होते हैं, आपके माली होते हैं, आपके वॉचमैन होते हैं, ये आपको प्रोफेशन की तरह दिखते हैं। लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो देयर माली और वॉचमैन्स नेम। आप उनको बस वॉचमैन करके बुलाते हो। दैट इटसेल्फ is being broken by Vivek Gombar in this role, because he's one of the first people in the movie who calls her Ratna, who doesn't call her Bai. He calls her by her name. और उसका जो फ्रेंड भी है वो भी रत्ना ही बोलता है। मतलब that shows कि he is also having that sort of similar mindset वाला company around. Although उसका फ्रेंड भी बोलता है कि listen, it's going to be very difficult for her. If you love her, just let her be. But he's still recognizing her and seeing her for who she is. He says she's a sweet girl, she's taking care of you. लेकिन वो कभी इस घर की बहू नहीं बन पाएगी. You know? Absolutely. तो yeah. Go ahead. But like मैं एक्चुअली नहीं, मैं यही बोलना चाहूंगा, तूने जो अभी बोला ना वही लाइन को मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा। लाइक एक वही जब भी बोला था कि ये वो मतलब इसको क्या बोलते हैं, ये फोक एंड नाइफ के साथ कैसे खा पाएगी इसको, तो वो भी नहीं पता रहेगा यार, वो कैसे इस घर के बहू बन पाएगी, ऐसा सब। और लाइक तभी अश्विन ने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था कि यार बहुत अच्छी चीज बोली थी कि अगर हम लोग यहाँ से चले जाए, किसको पता, मतलब लाइक कौन हमें जानेगा। लिटरली हम लोग को तो कौन, मतलब बाहर के लोग कोई भी इसको ऐसे नजरों से नहीं देखेंगे, एटलीस्ट मेरी बीवी की नजरों से देखेंगे। सो वैसा लाइक वो स्टीरियोटाइप एक्चुअली जो बाउंड्रीज है वो हमें क्रिएट करता है यहाँ पे, वैसा है। सो वो बाउंड्रीज अगर हम क्रिएट करते तो हम ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आई थिंक उसने जो डायलॉग बोला था कि हम लोग अगर यहाँ से चले जाए तो मतलब वो क्या हो सकता है, मतलब कोई पहचानेगा नहीं हमें, तो वो लाइक बाउंड्री को तोड़ रहा था। I have a slightly different take on this. अच्छा हाँ। जो मूवी में बहुत इजी होता दिखाना कि he goes to US and then he gets her to US and then life is hunky dory. जो 90% केसेस में शायद वैसे ही होता होगा कि आप अपनी सिचुएशन से निकल के फिर एक कम्प्लीटली अलग दुनिया में चले जाते हो जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, लेकिन आप तो खुद को जानते हो ना। You are aware of where you come from and what your reality is. And that is what he wanted to change. So it would have been the easy way out for him to change her surrounding.
but he took the difficult way of letting her change her destiny. Okay. Letting her be in the same situation amongst the same people in the same place and rise above where she was abhi. Because ये जो एक question है जो movie का नाम भी है, is love enough, sir? The answer I got was no. Because what is required is also self-respect. Way, way, way more important than love. And that is what he gave her. जब वो बोला था ना कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका दो, he didn't mean कि मैं तुम्हारे लिए फ्लैट खरीद के दूंगा, मैं तुम्हें यूएस लेके जाऊंगा. What he meant was कि मैं तुम्हें तुम्हारे खुद के पोटेंशियल से मिलवाऊंगा. I will make sure that you gain that lost self-esteem, that self-respect जो सोसाइटी ने तुमसे छीन ली for a fault which was not yours. तुम्हारी गलती नहीं थी कि तुम विडो हो, तुम्हारी गलती नहीं कि तुम गरीब घर में पैदा हुई हो, लेकिन इससे ऊपर उठने की पोटेंशियल तुम्हारे में ही है. And that is what he gives her. So सराउंडिंग चेंज करने से आपका रियलिटी चेंज नहीं होता. आपकी रियलिटी, आपकी डेस्टिनी तभी चेंज होती है when you decide कि ये मुझे चेंज करना है. And then wherever you are in the world, it doesn't matter. आप चाहो तो पूरी लाइफ धारावी में रहो, लेकिन अपना खुद का लेदर का बिजनेस करो. That is completely on you and how you want to shape your destiny. So I look at it that way. अच्छा. But आशी, since obviously ये बॉलीवुड फिल्म है और मैं सबको यार ये सवाल तो पूछता ही हूँ यार, अगर बॉलीवुड फिल्म है, हिंदी फिल्म है, तो बात तो इसकी होनी ही चाहिए. गाने कैसे लगे यार? मुझे तो ऐसा लगा कि ये तो इंडी फिल्म रहेगा तो गाने नहीं रहेंगे, लेकिन इस फिल्म को खत्म होने के बाद मैं तो खुद वो जो कौन सा एक गाना था वो तो मैं लूप पे सुन रहा था सच में. तुझे कैसे लगे एक गाना? वो मतलब एक दो ही गाने थे आई थिंक, लेकिन वो भी कैसे लगे थे? यार ऑनेस्टली मैंने इस मूवी के गाने इतने नहीं सुने हैं बिकॉज आई लव दिस मूवी फॉर द मूवी. एंड मेरे लिए I don't even take it like a conventional Bollywood movie. Thank God that they did not have a typical song and dance wala dream sequence and romance, and thank goodness that they kept it very, very grounded, very subtle. और उनकी मतलब जब होता ना कि जब परफॉर्मेंसेस ही इतने अमेजिंग हो, फिर यू डोंट फील कि कुछ मिसिंग था. एंड क्रेडिट में अगर कुछ हुआ या बीच में अगर कहीं कुछ सोचते सोचते कोई गाना आ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन इट वाजंट दैट वाज एन इंटीग्रल, मतलब वो अगर नहीं भी होते, ऐसा नहीं था कि द मूवी फेल्ट इनकम्प्लीट. द मूवी वाज कंप्लीट इन इट्स ओन सेंस. वो एक अच्छी लेयर ऑन, लाइक एक एक्स्ट्रा लेयर ऑन द केक वैसा था. Possibly. I also want to talk about the wall sequence that you're talking about, jo pehle kuch day pehle you were talking about, ke that again is shown so beautifully. Ke initially in the movie, you have his world and her world separated. तो दिखाते हैं कि वो अपना एक इंग्लिश एक हॉलीवुड मूवी देख रहा है, द कैमरा पैन्स, और वो अकेले अपने रूम में बैठ के देख रहा है. फिर दीवार आती है और वो अपना मराठी सीरियल देख रही है अपने रूम में बैठ के. तो इट इज लिटरली टेलिंग यू कि इन दोनों के बीच में सिर्फ एक दीवार नहीं है, इन दोनों के बीच में दो पूरी दुनिया है which are separated, so the time when he finally enters the kitchen, जब वो अपनी बहन की शादी के लिए गई हुई होती है and he's missing her, it's evident कि he's missing her. वो उसकी चीजें देखता है. उस छोटे से कमरे को भी इतने प्यार से सजाया हुआ है उसने. If you notice, there are small gardens, कहीं पे कुछ छोटे फूल रखे हुए हैं, अपना बेड नीटली लगाया हुआ है. तो छोटी सी जगह में भी she's done it so beautifully, and that's what he notices in these small things about her, कि वो है तो मुझसे बहुत अलग लेकिन actually काफी similar भी है. वो भी अपनी, if you see his house, it's not like a traditional bachelor pad. वो भी बहुत neat and tidy, हर चीज अपनी जगह पे. और एक और चीज जो उसको बहुत अप्रिशिएट करी, जो बहुत पहले आई थी इन द मूवी, जब वो आई थिंक कुछ ट्राई कर रही है और उसको शी नीड्स द बिग मिरर, और वो उसके रूम में जाके चेंज कर रही है. शी वाजंट एक्सपेक्टिंग कि वो जल्दी आ जाएंगे. तो
वो जब when he walks in on her, he is feeling embarrassed कि it's a lady and I walked in on her, and she is feeling embarrassed कि उनको लग रहा होगा कि मैं उनकी चीजें इस्तेमाल करती कोई हूँ, लग्जरी उनकी चीज absence यूज कर रही में, हो कुछ। या उनका भरोसा तोड़ रही हूँ। तो वो जब आके लेटर ऑन बहुत बहुत स्वीटली, ऑलमोस्ट रोने वाली हालत में, व्हेन शी सेज कि सर बाकी सर्वेंट बड़ा वाला एसी चलाते हैं, ये करते हैं, वो मैं कभी आपके कमरे में नहीं। तो वो इनफैक्ट मुझे पता है, मुझे तुम बताओ, वो कंसोल करता है, यू नो, कि इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए आई एम सॉरी, यहाँ पे तुम बोल रही हो, बट दिस इज हाउ ही अंडरस्टैंड्स दैट शी इज डिफरेंट. These are small things which tell him that she's different. एक और point जो मैंने notice करी, जो मैंने I think previously नहीं notice करी थी, which I have noticed in this time, was वो बोल के जाती है कि मैं छोटी की शादी के लिए जा रही हूँ, 3 दिन में आ जाऊंगी, और जब वो वापस आती है तो he was like, मुझे लगा गणपति के बाद आऊंगी, because वैसे ही होता है ना, आप बोलते हो कि मैडम 2 दिन में, लेकिन आप 12 दिन बाद आते हो, स्पेशली गणपति के टाइम पे इन बॉम्बे. If anybody is familiar with the Bombay house helps and everyone, तो वो भी that subtle smile on his face, when he knows कि हाँ she is, वो अपनी जबान की पक्की है, उसने बोला था कि मैं 3 दिन में आ रही हूँ, उसने 3 दिन में ही she came back. So these are things which he notices about her, which tell him कि she's different. तूने एक बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा यार, तूने एक पॉइंट अभी बीच में बोला कि वो मराठी सीरियल्स देख रही, वहां से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज दिमाग में आई कि लाइक जब भी वो मराठी में बात करती थी, लाइक अपने नेटिव बोलते ना कि अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, ब्रो मैं वही बोलता हूँ ना कि तिलोत्तमा सोम आई थिंक बंगाली है, और इतनी पिच परफेक्ट मराठी में बात कर रही है, और तू और मैं तो यार बॉम्बे में रह चुके हैं, तो मतलब मैं खुद हैरान हो गया कि यार वो बंगाली होके इतनी अच्छी मराठी बोल रही थी, तो इतना हैरान हो गया था यार मैं, ऐसा हो गया था. सो यही यार बात है ना कि यार अच्छे एक्टर्स की, तिलोत्तमा सोम अभी उनको अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, लाइक फ्रीक्वेंट रोल्स मिल रहे हैं आई थिंक, लेकिन जब ये 2018 था, उन्होंने यार ये रोल को आई थिंक बहुत सीरियसली लिया था, और बहुत सीरियसली रिसर्च करके वो उन्होंने प्ले किया था, क्योंकि यार ये एक बहुत ही अहम चीज होती है. कोई भी अगर नॉन हिंदी डायलॉग अगर बोलना है तो यहाँ पे तो वो ग्रिप आनी चाहिए, और वो एक्सेंट भी बराबर आनी चाहिए, तब जाके कुछ बात बनती है, और तब जाके परफेक्ट बनती है. और यही चीज है ना, मैं विवेक गोम्बर का जो प्रीवियस मूवी था कोर्ट था, उसमें यही चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो लाइक वो गुजराती एक्टर कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, और उनकी गुजराती बराबर नहीं थी, वैसा था. सो मैं लाइक वहां पे पकड़ लिया था कि यार ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे तिलोत्तमा शो में ऐसा मौका दिया ही नहीं है कि यार कि हम पकड़ सके, क्योंकि इतनी परफेक्टली उन्होंने वो लैंग्वेज को ग्रास्प किया, और इवन नॉट जस्ट दैट मराठी बट कोई भी वो जो मतलब उनका तरीका होता है हिंदी में बात करने का, जब ये लाइक वैसे रहता, तो वो बहुत अच्छा ग्रिपिंग था. एट दी एंड एक्चुअली पूछना चाहूंगा कि जो वो एंड कैसा लगा था यार, कि जब भी वो आखिर में अपने सर का नाम बोलती है, वो लाइक वो ये पूछना चाहूंगा कि बहुत मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था इसलिए. Did you realize that was the first time we got to know his name was Ashwin? हाँ नहीं, सो ये तो पता था. Every single time his friend also was calling him Ash, so nobody was calling him Ashwin. So this was the first time in the movie जब हमें actually उसका नाम पता चलता है, and the first time when they both are addressing each other on first name basis. वो हमेशा बोलता है कि मुझे सर मत बोलो, मुझे सर मत बोलो, लेकिन तिलोत्तमा सोम she knows कि अभी मेरी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि मैं उनको डायरेक्टली नाम लेके बोलूं. Even though I know this man loves me, even though I know that he respects me, I still need to respect myself to be able to think कि मैं उनके बराबर क्यों, क्योंकि आप किसी को फर्स्ट नेम बेसिस पे जब आप बोलते हो तो आप उनको अपने से बराबर समझते हो. आप अगर किसी को सर बोलते हो तो आप उनको अपने से एक ऊपर के दर्जे पे रखते हो. Absolutely. So that is where he was sort of in his way uplifting her and bringing her out of her cage, her mental cage जो उसने आसपास बना रखा था.
because he also was technically in his own mental cage. जैसे वो एक डायलॉग होता है कि I'm drifting away from the ending, I'll come to that, but एक डायलॉग होता है where he's like they both are on the terrace and he's like कि हम कुछ देर के लिए बाहर कहीं जा सकते हैं, तो वो देखती है कि मुझे बाहर तो जाना है उनके साथ, लेकिन मुझे दुनिया से दूर, दुनिया की नजरों से, उनके जजमेंट से दूर जाना है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? तो then she takes him to her favorite spot, which is the terrace. और वहां पे फिर you know when they are having that conversation, she tells him कि मुझे लगता था कि बड़े लोगों की जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन आपको देखते हो तो लगता है कि आप भी अपनी मर्जी की नहीं कर पा रहे हो. You're also not able to leave everything over here and go back to America and be a writer, जो आपको बनना था. तो दोनों अपने एक तरीके से, क्योंकि कोई रोक नहीं रहा है फिजिकली कि आप तुम अमेरिका मत जाओ, लेकिन दोनों के अपने अपने एक मेंटल केजेस हैं, and both are helping each other to kind of break that mental cage and rise above. तो जो ending वाला part है is when they have finally broken that mental cage, when he's I mean it's not shown that he's in America, but it's implied कि वो अभी वापस US चले गए हैं, or maybe he started to write on his book, or maybe you know he's in the final stages of publishing or something. He's on his path, and now she's on her path of becoming a successful fashion designer. So that is when they both now are at an equal level, and that's when she says Ashwin. That's when she calls him by his first name, क्योंकि उसको पता था कि अब मैं उनकी बराबरी करने की कोशिश कर सकती हूँ. Now I'm happy with my own situation. और वो अश्विन भी जाते जाते लाइक उसने, जैसे तूने एक्चुअली बराबर पॉइंट आउट किया था कि लाइक उसको अपने में ही उसने छोड़ दिया और अपने में ही उसको आगे बढ़ने का लाइक वो मौका दिया, और उसने मौका अच्छे से दिया कि अपनी दोस्त के अंडर पहले बात तो काम करने का ये दिया था. सो ये एक चीज उनके तरह लाइक अश्विन के एंड से मुझे बहुत अच्छी लगी थी यार, कि वो एटलीस्ट वो गया तो सही, चलो वो प्यार अधूरा जैसा रह गया, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने वो कुछ तो किया उसके लिए कि लाइक वो अच्छा. तुम्हें लगा कि प्यार अधूरा रह गया? आई थिंक हाँ इंटरेस्टिंग यार. एंगल. अच्छा, हाँ यार, सच में मतलब अगर रहते साथ Why? में, अगर साथ में रहते तो यार अच्छा लगता, लेकिन तो you think if someone moves abroad or someone goes away for any reason, तो प्यार अधूरा रह जाता है? देखो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार एटलीस्ट इसके बाद एंड के बाद और कुछ दिखाया नहीं है, एंड ही था. That's a different topic for a different day, but अच्छा. but नहीं, it's अच्छा. I totally disagree with that, and I don't think when love is true, it doesn't need the stamp of साथ में रहना, साथ में करना. हो सकता है कि for a certain duration you're away and then you come back together and then you build a strong relationship, क्योंकि बहुत लोग साथ में रहते हैं लेकिन actually साथ में नहीं होते हैं. So if you really think about it, the true definition of love, I don't think anybody has been able to crack in the world, so I am not going to attempt to do it either. लेकिन I don't know, maybe actually ये बोल नहीं सकता. हाँ, वो दोनों अपनी तरीके से पहले एक दूसरे को काबिल करने के पहले आप खुद को काबिल बनाओ. That is the whole and sole purpose of this movie. That is love enough, sir? No, it's not. You have to have a huge component of self-respect which comes much above the love that you share for each other. If you don't love yourself, you can't love someone else. ये बात बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी मूवीज में हमें बार बार बोलते रहते हैं, but the way they show it in this movie it was something very very unique, which is what I love. अच्छा, वाओ, दैट्स ग्रेट यार. बट फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आशी इस पॉडकास्ट पे, इस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट पे आने के लिए. लाइक मैं यही चाहता हूँ कि यार ये मंथ में
like mostly her like वो woman centric films ही मैंने choose की है like lineup में रखने के लिए, चाहे वो तमाशा हो, like I think एक woman वाला angle बहुत like important है उस film में भी, और even luck by chance भी हो, या सताक्षी के साथ जो like तू जानती भी है सताक्षी को, like उसके साथ मैंने सोनी किया था, और even ये अभी ये film लाइक मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा कि यार ये महीने ऐसी सब फिल्म्स की है, लाइक ऐसी सब फिल्म्स पे रिकॉर्ड की है. सो थैंक यू सो मच लाइक फाइनली कम फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट आशी. Thank you so much, Sangeet. And in closing, I would also want to add that I don't see Sir as a woman-centric or a woman empowerment movie. I see it as a self-empowerment movie, breaking the stereotypes from both sides, and that is what this movie talks about. Which is why, holistically, this movie gives you that the central character, of course, is Tilottama, which is why we tend to think it's a woman-centric movie, but it's ultimately two underdogs who are eventually helping each other regain their self-consciousness, their self-respect, their self-esteem. And that, for me, when both people are the winners, that's the most holistic experience. अच्छा, wow, thank you so much यार, ये एकदम बहुत अच्छे से फ्रेम किया है सच में, इसलिए thank you so much Ashi, and I'll see you in another video. Thanks Sanket, thank you so much.